Okay, good morning students, and today we are going to start our class with the sums of measurement again. Today we will again do measurement sums, measurement of length, measurement of weight, measurement of capacity. Okay, so now you will need your book. So open your book, page number 164. Page number 164. Okay, and you have to do these sums on the book side by side. You will write answers in the chat box also. ठीक है, आपने ये sums book पे भी कर लो क्योंकि ये mental ability से related sums है. ठीक है, book पे भी कर लो, साथ में आपने chat box में भी answer लिखना है. Got it? Okay, so shall we start? Be ready with your book and your pencil. ठीक है, now see, first question is 5 meters 83 centimeters into centimeter. मीन्स हमें 5 meters 83 centimeters को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? Which option will be correct if we convert 5 meters and 83 centimeters into centimeters? सी, हमें 5 मीटर को क्या करना पड़ेगा? 5 मीटर को हमें पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद उसमें हमें जितने सेंटीमीटर 83 सेंटीमीटर गिवन है, 500 में हमें वो सेंटीमीटर्स हमें ऐड करने होंगे. देन वी विल गेट the option is given in 1 2 3, not in A B C. And don't unmute please. आपने unmute नहीं करना है. You have to write in the chat box. I am watching. Yes, Riddhi, Sanvi, Harshana, Maharaj. And you have to tick the correct option on the book also. ठीक है, आपने book पे भी ये option tick करनी है. Yes, the correct answer is 583 centimeters. How will we know? हमने क्या करना है? हमने 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 83 पहले से ही सेंटीमीटर में है. जब हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 500, है ना? और उसमें हम 83 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 583. ओके, 583 centimeters. Now next question, 8th question is 7,000 milliliters. 7,000 milliliter will be equal to which option will be correct? Right option number. Yes, Abhav has given, Satvik, Sanvi, Maharaj. All students have to write in chat box. 41 participants are there, including me and ma'am. That means 39 students are there. So you all 39 answers I want in chat box. 39 answers chat box में होने चाहिए. Yes, very good. Now I am going to take the names of those students who are not writing in the chat box. Very good. Anahat, Harshpreet, Harshana, Prisha. Very nice. So 7,000 milliliters is equal to 7 liters because 1,000 milliliter is equal to 1 liter. So 7,000 milliliter will be equal to 7 liters. Yes, very good. Everyone has given correct answer. Very nice. Now, 9th question. And please keep yourself on mute. बेटा, देयर इज नो नीड टू टच द माइक. माइक को टच करने की कोई जरूरत ही नहीं है. आपने बुक को रखना है अपने पास और आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और आपका फोन आपके सामने होना चाहिए. ओके, डोंट कीप योर फोन इन योर हैंड. हाथ में मत पकड़ो, उसको सामने रख दो. नाउ 9th क्वेश्चन इज convert 4 kilograms and 18 grams into grams. You can solve on your notebook. आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके भी बता सकते हो और you can tell verbally also. ठीक है, यहाँ पे आप verbally भी बता सकते हो. लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे
तब आपने प्रॉपर 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब आपको पीडीएफ में आता है ये क्वेश्चन, अगर गूगल फॉर्म में आता है तब तो आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में आता है तब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। आई कैन सी सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग 418 ग्राम्स। अब मुझे लग रहा है ये एक दूसरे का आंसर देख देख के टाइप कर रहे हैं। ईशान, कशिश, बलविंदर, हर्षप्रीत, समृद्धि has written options. Okay, beta 418 gram is not the correct answer. आप 4 किलोग्राम्स को पहले कन्वर्ट कीजिए ग्राम्स में, नोटबुक पे साइड में देखो 4000 हो गया, फिर उसमें हमने 18 ग्राम्स को ऐड करना है, उसमें हमें 18 ग्राम्स को ऐड करना है, तो वो हो जाएगा 4018, ना कि 418। 418 नहीं होगा, 4018, ठीक है। 4018 grams. Very good. Now correct your answer. The option number 4th is the correct answer. Yes. समझ आया जिन्होंने 418 लिखा था? हमने 4 किलोग्राम को पहले 1000 में कन्वर्ट करना। I'm sorry, some network problem was there. So I'm going to again share the screen. No problem. Yes. Okay. So convert 4 kilograms and 18 grams into grams. हमने 4 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, 4000 प्लस 18, उसमें 18 प्लस किए तो 4018 grams we got, and option number 2 is the correct option. Good. Now tick the appropriate 18 centimeter more of length 6 meter 694 centimeter is. बेटा ये आपके, हमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो 10th आप छोड़ दो। वैसे मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो क्या पूछ रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर मोर ऑफ लेंथ 6 मीटर्स 94 सेंटीमीटर इज, मतलब अगर हम 6 मीटर 94 सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो आंसर विल बी 4th, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू ऐड इन सेंटीमीटर्स। हमने 6 मीटर में नहीं ऐड करना है 18 को, हमने सेंटीमीटर जो 112 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 94 है ना, उसमें हमने 18 को ऐड करना है, और जब हम 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6 मीटर्स 112 सेंटीमीटर्स। ओके, okay, so now let's move to the next activity. Yes, in today's work we have done statement sums, है ना। आज के जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको वर्क सेंड किया है उसमें स्टेटमेंट सम्स है, ठीक है। So let's understand how to write the statements of capacity chapter, and these statements I have taken from your book exercise number 9.5 and page number is 160. Page number 160. Okay. So a petrol pump sold 18 liters, 500 milliliters and 30 liters, 75 meters liter petrol respectively to 2 car owners. ठीक है, एक पेट्रोल पंप है जिसने 2 कार ओनर्स, मतलब 2 ओनर्स मतलब मालिक, 2 पर्सन्स हैं, उनके पास अलग अलग कार्स हैं, और जो पेट्रोल पंप है इन दोनों को, एक को उसने दिया 18 लीटर 500 मिलीलीटर पेट्रोल और दूसरी कार ओनर को दिया उसने
30 लीटर 750 मिलीलीटर पेट्रोल, ठीक है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड टू दीज कार ओनर्स। टोटल इनको दोनों कार ओनर्स को कितना पेट्रोल दिया, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमें? व्हाट वी हैव टू डू हियर, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। Okay, Abhav has written addition. Mahiraj has written addition. Abhav, unmute yourself. Sanvi has written addition. Samriddhi has written addition. Abhav, are you there? Good morning, ma'am. Good morning. Okay, Abhav, you have written addition. Why we will do addition? Ma'am, because यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि टोटल करना है. Yes, because they have asked us that find out the total petrol given to these two cars. हमें टोटल पेट्रोल निकालना है दोनों कार्स को जो दिया है पेट्रोल पंप में, है ना। ये हमने ऐड करना है। वेरी गुड। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर द सॉल्यूशन? राइट इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी सॉल्यूशन की? Yes, you can take time, you can. Okay, so I have got first statement for the solution. What will be the first statement? A petrol pump sold petrol to first car is equal to 18 liters and 500 milliliters. Then what will be the second? A petrol pump sold petrol to second car is equal to 30 liter 750 milliliter. And then find the total quantity of petrol sold to these car owners. तो आपने टोटल क्वांटिटी लिख देने। थर्ड स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड टू बोथ कार्स इज इक्वल टू, उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड स्टेटमेंट। सुभाष हैज अ काउ एंड अ बफलो, ठीक है। सुभाष के पास एक काउ है और एक बफलो है। द काउ गिव्स 12 liters 550 milliliter of milk and the buffalo gives 9 liter 800 milliliter in one day. Okay, how much of milk does Subhash get from both the animals? दोनों एनिमल से सुभाष को कितना मिल्क मिलेगा? काउ है वो देती है 12 लीटर 550 मिलीलीटर एंड बफलो जो है वो देती है दूध 9 लीटर्स 800 मिलीलीटर। अब बताइए कि हमें सुभाष को कितना दूध मिलेगा डेली, हमें कैसे पता चलेगा? ओके, निर्मित, अनम्यूट योरसेल्फ। निर्मित। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, you have written plus, you have given the sign of plus, है ना? Yes. हाँ जी, can you tell me why? निर्मित, Yes. इसका मतलब आपने ऐसे ही लिख दिया प्लस, या बाकी बच्चे प्लस लिख रहे थे इसलिए No. आपने लिख दिया? Ma'am, no. बताओ, जल्दी से बताओ। ओके तान्या, अनम्यूट योरसेल्फ। तान्या, निर्मित म्यूट योरसेल्फ। मैम क्योंकि हमने इन दोनों की जो वो क्वांटिटी है उनको प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कम हो जाए, कम वाला आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मच ऑफ मिल्क डज सुभाष गेट फ्रॉम बोथ द एनिमल्स। दोनों एनिमल से टोटल कितना मिल्क मिलेगा? दोनों एनिमल मतलब हमें दोनों का टोटल करना पड़ेगा ना मिल्क का, है ना। दोनों का टोटल करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने क्या करना है यहाँ पे,
In this way we will solve these two statements. ठीक है? And what will be the first statement for second question? Second question के लिए first statement क्या होगी? Can anybody speak? Who will? Yes, ma'am. Let me take the name. I am Sahib. Sahib. Okay, Arav. Sahib, you are. Good morning, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए. हाँ जी साहिब, गुड मॉर्निंग बोलिए. Good morning. Repeat the question. Ma'am, repeat the question. That means you were not listening to me. Okay, I repeat. See, Subhash has a cow and a buffalo. The cow gives 12 liters, 550 milliliters of milk, and the buffalo gives 9 liters, 800 milliliters in one day. Okay, how much of milk does Subhash get from both the animals? तो इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी फॉर सॉल्यूशन? हमने क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट लेनी है. साहिब आपको आता है? बताओगे? मैम नहीं आता. ओके, आरव. मैम कैन आई टेल? वेट महिरा. मैम आरव, अनम्यूट योरसेल्फ. आरव बेटा देखो स्टेटमेंट है. ओके जसरूप. Okay, ma'am. The cow gives of milk. द काउ गिव्स मिल्क. ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? द काउ गिव्स मिल्क इज इक्वल टू 12 लीटर 550 मिलीलीटर्स. मैम यस मैम मिल्क ऑब्टेन्ड बाय काउ भी आ सकता है. यस यस यस. एनी वर्डिंग कैन बी चेंज्ड. वर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. देन सेकेंड स्टेटमेंट विल बी बफलो. द बफलो, ये मैं स्टेटमेंट वो बता रही हूँ जो आप इजीली क्वेश्चन में से ही लिख सकते हो. आपको अपनी तरफ से लिखने की जरूरत नहीं है. जसरूप म्यूट योरसेल्फ. ये स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगी. अब सेकंड स्टेटमेंट जैसे हो जाएगी, सेकंड लाइन है द बफलो गिव्स मिल्क इज इक्वल टू 9 लीटर 800 मिलीलीटर. थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी सुभाष गेट मिल्क फ्रॉम बोथ द एनिमल्स इज इक्वल टू, उनको ऐड कर देंगे. ठीक है, सो ट्राई करना, ये दो सम्स भी आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लेना. ओके, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी प्रैक्टिस्ड, वी डिड एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टेटमेंट सम्स एंड इनको हम स्टोरी सम्स भी बोलते हैं, जिसमें थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी होती है ना, एंड कन्वर्जन सम्स. ओके, so you will practice now. Tomorrow is holiday, you will practice these sums. So that's all for today's class. Thank you.